Let me know if you can see the screen. Yeah. Okay. Should I go to the chart, Anupji? Definitely. Hmm. Hmm. I think Prabhaji is out of screen. तो कोई काम होगा उनको. She might be back within a minute or two. Latitude, longitude. You want the details, Shriramji? Yeah. So, yeah, I've just scrolled up. Can you see it? Yeah. 1 second. Yeah. I'll just read it out. 10th April 1966. Okay. 12:08 is the time. Okay. Latitude is 1936 north. And longitude is 7040 east. 70. Yeah, 7040 east. Okay. The place is called Umarkhed. Umarkhed. Just in case you want to know that. Okay. Yes, Anupji. Yeah, you can show the chart. Yeah. Anupji, Prabhaji is back. Oh, yeah, I know. So, all of you know the Upche house theory, I think. All of us. Manoj, can't we see the South Indian part of it also? Prabhaji, the problem is that if I show both the charts, the chart becomes very small on the screen. Okay, so then I'll put it in my. Yeah, that will be good. Prabhaji, we will be focusing only on the Rashi chart. Okay? Yeah. Oh, yeah. So, we will be using Upche house theory. I will be taking the 10th house here. Okay? So, my cursor will be not showing to you all. This is a problem because Manuji is sharing the chart. Okay. Yes, Manuji, this is the 10th house. Yeah. So, Upche house theory says that Lord of 10th house, if it is in Upche houses, what are the Upche houses? That is 3, 6, 10, 11. Okay. Please, I assure you, it is not boring. I assure you all. So the Lord of 10th house is Jupiter. So if this Jupiter will go to that 3rd house, that is 12th house, and the 6th house from 10th house, that is yes, Leo,
and 10th house, that is own sign of Guru, Sagittarius, and the Capricorn. So these are Upcha houses for the 10th house. But this is not for the 10th house basically. This is only you can focus as a Karak house, not for the own house. ये अपने लिए नहीं काम करेगा ये उपचे हाउस. It will act as a कारक. Focus on the 8th house now. मनोज जी यहाँ पे कर्सर रखिए 8th हाउस में. यहाँ पे ये वाला. So 8th house कारक. Yes, 8th house. इसका कारक पहले तो लियो साइन का है ना, तो सन हो गया कारक. Okay, the sun is gone the Capricorn. Anup ji, for me your voice is breaking apart. क्या हो गया पहले तो? Me too. Same here, Ivan. I am facing audio problems. Yeah. Okay. Even here, I couldn't hear what Okay. Anup was explaining. Okay, I thought it was only a problem at my end. No. Okay. Yeah, Anup ji, your voice is breaking up slightly. Yes. Just a minute. Yeah. Just a minute. This is the chart. So we should take the planet as a Karak house. Okay. ये हाउस अपने से उपचे में होगा तो इस हाउस के लिए दिस इज नॉट बेनिफिशियल. 10th हाउस के लिए गुरु is not beneficial, that is agreed, because but we should take 10th house as a Karak house, right? So abhi let's assume the 8th house we will focus क्योंकि यहीं से मैंने छोड़ा था, तो 8th house लूंगा मैं और 8th house से इसका कारक हो गया लियो सन. ओके, तो सन has gone to the 10th house. Okay. Right? You all can hear me. Yes, Anup ji. Okay. Yeah. What happened? That sun is not in Upche house from the Leo sign. It is an 8th. 8th from Leo. Right. This is in. Yeah. This is not in 3, 6, 10, 11. Correct. Yeah. Now, what happened? The Karkatva has spoiled. 3rd house is spoiled as Karak house. हाँ. तो क्या हो गया? 8th हाउस को इसने प्रॉब्लम दे दी. राइट? हाँ जी. आप सुन सकते हो आई थिंक. Yes. जी. हाँ जी. हाँ जी. जी. राम जी, आर यू देयर? Yeah. श्री राम. I'm listening. ओके. Yeah, शशांक listening. जी, आर यू देयर? Yes, I'm here. I'm listening. ओके. सो व्हाट हैपेंड कि 8th हाउस को सन ने प्रॉब्लम दे दी बिकॉज सन इज नॉट द उपचे हाउस फ्रॉम द लियो और द कारक हाउस. Number 1. Number 2, this is the root Karak house for the 8th house. 10th house is the root Karak house. Okay. So abhi kya ho gaya? Let's again check the status of the Guru, Jupiter. So again you can see this is not in 3, 6, 10, 11 from own house. So this is in Lagna. That is 4th house. हाँ जी. Right, this is not in Upche house. तो ये इसने क्या किया? As a root कारक also, the Guru is not a good house. हाँ जी. Guru is not in a good house also like the sun. Correct. Yeah. तो अभी क्या हो गया? This is the उपचे थ्योरी. अभी उपचे थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. इसका कारक और रूट कारक दोनों गड़बड़ हो गया, तो 8th हाउस को प्रॉब्लम दे दी इसने. हाँ जी. लेकिन यहाँ पे हाउ वी विल चेक कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका? स्पॉइल तो हो गया. कितना मैग्नीट्यूड क्या है? 8th हाउस का स्टेटस क्या हो गया कि भैया कितना खराब हुआ? वी हैव नो मीटर हियर.
ठीक है ना, 1 to 100 कितने परसेंट, 20%, 30%, 50% और द 80% और द 100%. Obviously we can check from the surface 1, level 1 के दोनों अपने कारक और रूट कारक चले गए अपने से 8th हाउस में, कोई चला गया अनुच्चय हाउसेस में. ओके, तो इसको हम बुक में गुरुजी ने भी दिया कि ये पीड़ा संज्ञक हो गए अपने हाउस के लिए. पीड़ा संज्ञक फॉर देयर ओन हाउसेस, कारक हाउसेस, नॉट फॉर द 8th हाउसेस. Anup ji, one question here. ओके, तो ये हाँ So, For the Karak houses, माने? हाँ, पीड़ा संज्ञक for the 8th house, right? Because उसका कारक and root कारक are going to Anupachaya houses. So 8th house suffers, right? we will bifurcate here the karak and the root karak first. हाँ जी. Okay, the karak has gone to the pida sangyak house. Right. Yes. That is not a comfortable place for the sun. Right. Correct. Right. So that means as a कारकत्व 8 का बिगड़ गया ना. हाँ, exactly. Right. Right. 8th house status is Yes. हाँ जी. क्योंकि this is in पीड़ा संज्ञक हाउस, उसका कारक पीड़ा संज्ञक हाउस पे है. Right. Correct. हाँ जी. Yes. हाँ जी. In the similar way, को this is the 10th house, उसका गुरु, ये status of 8th house is spoiled due to karak and the root karak, because the karak and the root karak lord are in anupche places or the sthan. एक चीज हो गया क्लियर. हाँ जी. Yes. Yes, Anup ji. उन हाउसेस को मत लो आप, ये दोनों हाउसेस है ना, 3rd और द 10th हाउस, इनको आप लो एज ए कारक एंड द रूट कारक. इंडिविजुअली कंफ्यूज नहीं करो इनको. ठीक है. इन दोनों का स्टेटस दैट विल फिक्स द स्टेटस ऑफ द 8th हाउस. करेक्ट. राइट. ये पिलर हैं दोनों, ये दोनों पिलर हैं 8th हाउस के. करेक्ट. ओके, हाँ जी. तो अभी हाउ यू विल वैल्यू के भैया ये दोनों जो है कितना, इनका मैग्नीट्यूड कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, 10%, 20%, 30%, 50% या 100%. Okay. So everybody is there. I think some have disabled the video. That's good for the Hey, network. Anup ji, bandwidth के लिए Okay. क्या कहना है? Bandwidth issues है. Okay, that's good. That's good. That's good. That's good. Okay, so 8th house is spoiled because Leo has, sun has gone to the 10th house and the root karka has gone to the Lagna, that is 4th house. So we will check the नहीं Anup ji, we again lost you. अनुप जी फिर चले गए. As soon as he's talking about the most important bit, it sort of like goes away. करेक्ट. कोई संकेत है, पता नहीं आज. Hello Vicky ji, how are you? He is on mute, I suppose. He is on mute. Yeah. no. नहीं अनूप जी, आप नहीं, विकी जी. I think he got disconnected or something. अभी आ रहा है. हाँ, अभी आ रहा है. But let's Okay. hope it stays this way. That's good. अनूप जी जल्दी से बता दीजिए, 5 मिनट बच गए. नहीं, कोई बात नहीं. अनुप जी कोई मैं आपका बात वीडियो नहीं, स्टॉप कर कोई रहा हूँ. बात नहीं. ओके, गुड. हाँ जी, बोलिए अनुप जी. मनु जी अपना कैलकुलेटर निकालिए जरा यहीं पे स्क्रीन पे. कैलकुलेटर एज इन विंडोज का कैलकुलेटर. विंडो कैलकुलेटर, यस. ओके. आई एम नॉट श्योर आपको वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिकॉज कोई बात नहीं, आप निकालिए. ओके. हाँ जी, निकाल दिया.
MF निकालिए सन का, so that everybody should know. Okay. 1.2. 1.2 and बिंदु कितने हैं इसके सन के? सन के बिंदु है 3. इनको मल्टीप्लाई करो आप. So 1.2 times 3. 3.6. Yeah. 3.6. 3.6 तो कितना होगा? दैट मीन्स के सन इज स्टिल ट्राइंग. उसका पावर तो 3 है बैकअप का, लेकिन सन अपने से ज्यादा रिजल्ट देने की वो रखता है ना, हाँ. पावर रख रहा है. 3.6 दैट मीन्स सन स्पॉइल हुआ उल्टा बैठ के, लेकिन इट इज स्टिल ट्राइंग कि ये किसी तरह इसको एड्रेस करूं मैं इस सारी चीज को. हाँ. जितना मैं स्पॉइल किया मैंने प्रॉब्लम को, इसको मैं ठीक करूं फिर से. Yeah. राइट? Yeah. Correct. टिल नाउ इट इज ओके. हाँ जी. Yeah. तो सन इज उल्टा. सन हैज गॉन 8th हाउस, तो लेकिन 8th अच्छा house. नहीं है इसके लिए. 8th हाउस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सन एज ए कारक इज स्पॉइल्ड, बट इट इज स्टिल ट्राइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द 8th हाउस, बिकॉज ये उल्टा गया. Okay. सो सन वी कैन से के सन का प्रॉब्लम जो है थोड़ा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, बट इट इज स्टिल ट्राइंग कि ये प्रॉब्लम ठीक हो. तो अभी लेट्स गो टू द गुरु जुपिटर. हाँ जी. Okay. So Jupiter MF power is 0.5 multiply by 5. 2.5. 5. By So 2.5. कितना हो गया? 2.5. So गुरु का तो बैंड बज गया यहाँ पे. Correct. आधा हो गया. गुरु is not helpful as a root कारक. As a root कारक. प्रभा जी मैं बोल रहा हूँ एज ए रूट कारक Root कारक. गुरु का बैंड बज चुका है. ओके. हाँ जी. तो दैट मीन्स के गुरु के प्रॉब्लम से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला 8th हाउस का. 8th house का. हाँ. ठीक है. तो अभी क्या हो गया? सन इज ट्राइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम, लेकिन गुरु उसका प्रॉब्लम जिसका जितना उसका पावर है उससे वो प्रॉब्लम दे रहा है. उसका भी मीन्स के जितनी पावर है वो भी नहीं यूज कर रहा है सीरियसली. हाँ जी. ओके. Correct. तो 8th हाउस में क्या होगा? व्हाट विल द नेट इफेक्ट फॉर द 8th हाउस? लेट्स टॉक. वो इवन ना ले हम डेथ का. वी विल टेक द हेरिडिटरी पार्ट. Okay. हेरिडिटरी Okay. प्रॉपर्टी. ओके. हाँ जी. तो इसका हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के लिए हमारा रूल है कि अंश और मूल कारकांश इसको एस्पेक्ट करेंगे, डिवाइड और हो जाएगा फिर, है ना? हाँ जी. द 8th हाउस Yeah. है. यहाँ पे यू कैन चेक के कारकांश देख नहीं रहे हैं, सो इट इज नॉट डिनाइंग. हाँ जी. आपका मनु जी चार्ट ऊपर चला गया थोड़ा. हाँ जी. थोड़ा ओके. पूरा कर दो चार्ट को फुल से प्रिंट. ओके. नीचे करो चार्ट को. हुआ नहीं. नहीं कर दिया है अनुप जी. 1 मिनट में चला जाएगा तो हम दोबारा ज्वाइन करें. हाँ ये इम्पोर्टेंट बिट है अनुप जी. शुड वी ज्वाइन अगेन? नो मैं अभी बता रहा हूँ आपको. यस यस यस. बोलिए अनुप जी. हाँ. तो क्या हो गया? 8th हाउस का बैंड बज गया ना यहाँ पे. हाँ 8th जी. हाउस के लिए सन तो ट्राई कर रहा है, लेकिन गुरु ट्राई नहीं कर रहा है. हाँ जी. हो गया ना? तो हाँ जी. सन तो ठीक है, लेकिन गुरु नहीं ठीक है. दैट मीन्स के इसको, इस बंदे को इसका 8th हाउस का कारकांश और रूट कारकांश तो नहीं देख रहा है. दैट मीन्स डिनाई और डिनाइल नहीं, लेकिन को हेरिडिटरी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस नहीं है भैया. हाँ. ओके. का मंगल ये दोनों हाँ जी. इस हाउस का. जी. ठीक है. तो मंगल का MF देखेंगे हम. लेट्स टॉक अबाउट द 1.4. 1.4 ओके. हो गया जी. तो 4th हाउस में, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम दे रहा है कि 22 पॉइंट्स है भैया. तो दैट मीन्स ही विल नॉट बी एंजॉयिंग दैट घर का फैमिली हैप्पीनेस और घर वार का वो जो एक हैप्पीनेस होता है. 4th हाउस हैप्पीनेस विल बी नॉट देयर एज पर SAE. Right. ओके. Right. बट
This is the quality part. The अंश is quality part. MF is quality Okay. part. दोनों का. Hmm. इसको कंप्यूट Okay. करेंगे हम अब. तो यहाँ जी. पे तो 22 है, लेकिन यहाँ पे अंश जो कर रहा है, अंश है is in a good status. That is 1.4. जी. Okay, मंगल. जी. So प्रभा जी, यहाँ पे क्या होगा कि पर्सन माइट बी एंजॉइंग द थिंग्स, प्रॉपर्टी होगी, प्लॉट्स होंगे, अच्छा कोठी होगा, उसका बड़ा घर होगा, लेकिन हाँ। ही माइट बी नॉट शोइंग टू द सोसाइटी के ही हैज सो मच That is प्रॉपर्टी. हम्म. Okay. ऊपर से वो बस सिंपल सा लगेगा, कुर्ता डालेगा फटासा, ऐसे बाहर को घूमेगा चप्पल डाल के कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है. He won't speak, but he will look like that. Okay. He won't show to the society. Okay. Okay, कि मेरे Okay. पास ऐसा नहीं है कुछ. This is the quality part, but Mangal and Mangal, this is Karkansh and the Mool Karkansh. Okay, so when we just jump to the MF factor, this will determine or fix the quality. This is not the timing. MF is not the timing. Please understand. Yeah. This is the Okay. quality. कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है. वो दीवार वाला डायलॉग बोलेगा ना फिर वो. जी. घर है, वो गाड़ी है, बंगला है, माँ है, तुम्हारे पास क्या है. तो यहाँ पे अप्लाई होगा भैया कि यहाँ पे 22 पॉइंट्स है. ही इज नॉट शोइंग ऑल दिस. ऐसा डायलॉग वो नहीं बोलेगा. Yeah. Yeah. So Anup ओके. ji, हाँ जी. हाँ, बोलिए बोलिए. So Anup ji, basically it means कि SAV is the public facing part of it and MF is That's correct. the true quality. क्या actually क्या है? Okay. MF is strength of the houses. Okay. ये स्ट्रेंथ हो गया उसका. स्ट्रेंथ उसका वीक दिखाई दे रहा है बाहर से. Yeah. Apparently. ठीक है. उस्मान Anup ji, I have a doubt. बहुत है उसका. Yes. हाँ जी, अनूप जी, बोलिए. अभी मार्स का जो पॉइंट्स हैं, बिंदुस हैं, वो 4 हैं, राइट? आप बिंदुस नहीं देख रहे हैं, 4 पॉइंट वाला कहाँ बिंदुस मंगल का 4 है, चलिए. राइट? तो 4 माने 5.6 हो गया. लेकिन नॉट प्लेट बिंदु से है. ओके. Agree, लेकिन you taking things otherwise. No. Here we have to see अंश, कारकांश. Are not Okay. taken as per bindus. कारकांश is कारकांश. ओके. मूल कारक is मूल कारकांश. ओके. Okay. ठीक है ना. जो मल्टीप्लाई उसके करके बाद उसकी स्ट्रेंथ कारकांश देखनी है MF से. उसका देखिए what is MF? This is the placement of any planet as per seen in the Rashi chart. ओके. कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में गया, वो उसका MF वहीं से फिक्स होगा. हाँ. सत्य है. Yeah. अगर मान के चलिए मून इज इन सर, तो वो अपने घर में ना. हाँ जी. तो मून इज कंफर्टेबल. आप में बैठोगे, फ्रिज खोलोगे, टीवी देखोगे, यू आर ना, हाँ जी. यू आर कंफर्टेबल. आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा बिकॉज यू आर इन योर ओन हाउस. हाँ. तो यहाँ पे मंगल कर रहा है 1.4 फ्रीडम. उसको फ्रीडम मिल गया मंगल को हाँ जी. फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटम पार्ट. एक से ज्यादा हो गया. हाँ जी. Okay. One value is neutral, and if it is more than 1, that is comfortable. That planet is comfortable as per Karak, and if it is less than 1, that means he is not position. Right? That means he is not in उपचे houses. Okay? चलो मैं ये भी ऐड कर देता. मनुज ने ये पॉइंट के MF फैक्टर का रेडिश किया इसको, बिकॉज इसका
फैक्टर और ये प्लेनेट इसमें कंफर्टेबल नहीं है Okay. एज एन अंश एंड कारकांश एज एन प्लेनेट आल्सो. Mhm. हाँ जी. तो भी मैंने बता दिया. ऐसे भी प्लस यू कैन प्ले के specification of the conch and the root conch as per FM, or sorry, M, and then you check the SAV. You have to apply this for the charts, and then you will. I will give you the reference also. Don't worry. In the cost pension book, you will know कि ये कैसे calculate होता है सारा. Okay. Sure. I think more of us ignore the cost pension reader one. सब कुछ उसमें हुआ है basically. Right. आपने आज हमें ऐसे भी बताया which is public thing, like जो लोग जो सोचते हैं, और MF जो है which is a reality. No. This is not a public thing. This is not a public thing. Just I explained. I given an example. I know. Is the strength of the house. नहीं जैसे 22 point of the 4,028 house. है, and Okay. because if it is Mars is 1.4, so you said वो बंदे के पास प्रॉपर्टी है, बट वो दिखाता, I mean if it was not 28, it was 22. इसमें से लोगों को दिखाने के लिए वो कपड़े ऐसे पहनते हैं, but because it is 1.4, he's got property, right? हाँ, उसका सोशल फिगर्स है. You mean to Correct. say कि नहीं बाहर से दिखा यार इसके कुछ नहीं होगा. Okay? हाँ जी. So ऐसे भी बाहर से दिखता है. तो कई बार क्या होता है इंटरनल नेचर. वो तो क्वालिटी पार्ट है. And if you multiply with windows, this means it is for a कारका, for उसका B house का रैंक बताता है अपने, right? Yes. उसका स्ट्रेंथ बताता है कि कितना रेशो इसका है, राइट? हाँ जी. Okay. हाँ मनोज जी. हाँ जी अनुज जी. आई थिंक ओके. The three things we learned. हाँ, तो प्रभा जी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. और यहाँ Right. दिस इज नॉट ए न्यू थिंग. दिस इज गिवन इन द कास्ट डायमेंशन बुक. हाँ. So Prabha शुड आई ji, गिव द रेफरेंस पेज? Yeah, please. हाँ हाँ जी. जी. You can open 193 page, the cash dimension book. 193. Okay. 193, because everybody has the same book. Yeah. Drawing factor. Shashank, are you there? Yes, I'm here. I'm listening. Yeah, open 193 page. You can see the 193 page. 193? Whenever you will get the chance. 193. हाँ जी. Just the book. Just to explain the things in a simple way. And on page 194. There are no base sets actually. Yeah. 193, 94, that is the same thing, because Yeah, 194 में end हो गया उसका, है ना? Yeah, पीड़ा संज्ञक 194 में mention हुआ है. हाँ, yeah. जब 193 और 194 होगा, then you will understand कि मैं इसीलिए एग्जांपल लेता हूँ so that कि you can make friends for that. Okay? Right. ये nobody is applying such laws. Everybody is jumping to the कारकांश and the root कारकांश. इसको देख लिया, deny हो गया, ये हो गया. नहीं भैया, ऐसा नहीं होता. Sometimes you have to go for the detail. Actually, yeah. Okay, everything. Yeah. This is the thing is there.
But what I'm doing, I'm simply explaining the things verbally. Yes. गुरुजी ने यही बोला है एक्चुअली, जो पे दिया है गुरुजी ने यही बोला है ऊपर से. So this is a great part. देख रहे हैं हम, उसका एस्पेक्ट देख रहे हैं भैया, और भी कुछ देखना आपने. कारकांश हो गया मीन्स का 0.4 हो गया या 0.8 है उसका एमएफ. ठीक है. तो भैया वो सोसाइटी में शो ऑफ कर रहा है. फॉर द फोर्स बोलिए, 6th हाउस बोलिए, किसी भी हाउस के लिए बोलिए, मनी मैटर्स में बोलिए, 11th हाउस में. तो वो दिखाता है मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी वाड़ी में घूमेगा. तो चाहे वो रेंट पे ले टैक्सी, लेकिन दिखाएगा मेरे पास पैसा है. ये समझने की बात है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बस इसको एक बार समझ लो आप, कॉन्सेप्ट को. बस बुक में पढ़ लो यार. मेरा कहना मत मानो आप. जस्ट रीड द बुक 193 पेज 194. अनूप जी बात ये, और जैसे आपको समझ आता है वैसे पढ़ो आप. अनूप जी बात ये, 193 पेज पढ़ के आपको समझ में आ गया, हम लोग फिर भी लगेंगे. I would agree to a great extent. This is the problem. This is the problem. अब आपको आराम से समझ आ जाएगा वो पेज. जी. अभी नेक्स्ट सेशन में आपको आई विल के डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस को देख रहा है उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ये नहीं है कि उसका अंश देख रहा है डिले करेगा. कोई प्लैनेट भी कर सकते हैं या बैड मैन, गुड और बैड, एनीथिंग. या तो क्या होता है फिर पीडीएफ होता है आगे बढ़ जाता है ना. आप जो पीडीएफ चूज करते हैं वो नहीं मिलता आपको, वो निकल को जाता है वो. हाँ जी. तो आप भी चेक लीजिए उसको. आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसको अप्लाई कीजिए. दिस इज द सेम थ्योरी. है इसमें. ये तो लाइफ लॉन्ग है, जो ऐसे भी है लाइफ लॉन्ग है. स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस. लेकिन ये स्ट्रेंथ कितना अंदर से दिखता है या बाहर से दिखता है. बाहर स्ट्रेंथ दिखता है या अंदर से है. ये खोखला तो नहीं है स्ट्रेंथ इसका. हवा अंदर, ये भी देखना है ना. तो नहीं मुझे कोई. अनूप जी इस चार्ट में जैसे 10th हाउस का 26 ही है एंड सैटर्न इज ओनली 1 जो कारकांश है. दिस मींस ही इज नॉट इन अ वेरी गुड जॉब. कैन वी से दैट? प्रभा जी हमने फोकस किया था 8th हाउस का. हाँ जी. 8 से हम 4th में आ गए, 4th से हम 10th में जाते. प्रभा जी हमने फोकस किया था 8. अभी आप करोगे इसका कारक 10th का 5th and you will go to the 12th house. देखोगे सामने शनि आ गया एक पॉइंट पे. so he is grounded to the earth. ये अथॉरिटी के बारे में बूस्टिंग नहीं करेगा ज्यादा. जो है सो है भैया. मैं उस मॉल के चलिए गया, मैं उस फर्म में लगा हूँ, कंपनी में लगा हूँ, मैं क्लरिकल पे हूँ. वो ये नहीं बोलेगा मैं ऑफिसर लगा हूँ. हाँ ओके ऐसे. ठीक है. वो बूस्टिंग उसके बारे में. ओके समझा कुछ. क्योंकि उसके अंश जो है, उसके दोनों अंश जो 10th हाउस के हैं वो शनि, कारकांश भी शनि है. ओके. हाँ जी. तो शनि का एफ जो है ना, दैट इज न्यूट्रल. दैट इज 1. तो दैट मीन्स कि वो बंदा हाँ जो है सो है. ओके. तो यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन फॉर द अथॉरिटी. कि मैं ये नहीं है मैं बैल हूँ भैया, मैं बहुत सीईओ लगा हूँ, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, बोलेगा वहां पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंश इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने रेफरेंस पेज
को 19314 भैया पढ़ लो, देख लो, कैलकुलेट कर लो, फिर से नहीं पूछना, ठीक है? तो बड़े के लिए, सभी के लिए, और अप्लाई करो, यू जस्ट अप्लाई फॉर द चार्ट। 8th हाउस को मैंने शिफ्ट इसलिए किया, यू ऑलवेज फोकस फॉर द डेथ, ध्यान ही उधर जाता है 8th हाउस के लिए। तो मुझे बोला था इसको उड़ा दो यार, 8th हाउस को छोड़ो आप, लेट इट बी ब्लैंक। Yeah, we have a Anup ji, tendency to record look at out negative है। events. बोलिए। अनूप जी, सेकेंड हाउस के लिए भी अभी मून कारकांश और मूल कारकांश है, बट यहाँ पर मून को 0.8 है, मीन्स लेस है। So this means he is not having family happiness और मनी नहीं। तो यहाँ पे नेट एसेट्स उसके इतने अच्छे नहीं है, क्वालिटी उससे इतना अच्छा नहीं है। ओके, फैमिली करिए आप इसको, फैमिली का हाउस लेके चलिए, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द फैमिली, number of planets with more planets in the bracket will tend to add the family members also. Okay, worries will be also there. अभी मैं बताऊँ, आप सोचना बाद में, more planets in the 7th house, more planets in the 11th house, आपको बहुत ज्यादा worries देंगे। Every time you won't get rid of the worries. ऑलवेज एक प्लेस दूसरा आ जाएगा, अंतरा तीसरा आ जाएगा, आप सेकंड हाउस से नहीं छूटोगे। बराबर। करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर ऑलवेज ईगर, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, डी में जाए ई में आ जाएगा, ई में जाएगा डी में आ जाएगा, तो बिल्कुल ये चलता रहेगा। सो मोर प्लैनेट्स इन द 7th एंड इन द 11th हाउस। यही योगा है। हम वैदिक में योगा कहाँ से है, ये वैदिक है, ये ऐसा हो गया वैसा, कुछ नहीं। आप सामने होगा सब कुछ मेरी तरफ बोलोगे, फिर आप अंदर से मोस्ट इन द सेकंड हाउस एड बचा हाउस। अरे 3 हाउस है उसके, सेकंड हाउस में ज्यादा प्लेनेट हो गए, 7th में हो गए, 10th में हो गए, 11th में सॉरी हो गए। क्या कंधा भागेगा बाहर को, घर छोड़ के भागे क्या? दुखी आत्मा होगा। तो बहुत अच्छा है, आप बुक को ध्यान से पढ़िए, गुरु जी की बुक, इसको एक बार आप छुट्टी लेके पढ़ लीजिए 2-4 दिन। दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल। मैं तो इसको पढ़ रहा हूँ, मैं पता नहीं कितनी बार 15 साल से गुरु जी का वो ऑडिट में सुनता हूँ सब कुछ। तो ये these are important factors। हम सीधे RI की फंड है, DAE देख लो, एस्पेक्ट हो गया, यस हो गया, गुड और बैड हो गया, वो ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू स्टडी दैट आल्सो। आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ा इधर उधर से कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ते रहते आई एम सेइंग, आपने अच्छी तरह समझा दिया आज। नहीं ऐसा नहीं है प्रभा जी, नहीं सीरियसली, बिकॉज़ वी जस्ट रीड इट जस्ट पेज का रेफरेंस दे भैया। या इट्स रियली नाइस तो एक्सप्लेन। मनु जी तो यही बोलते हैं, कहते मैं तो हर बार पढ़ता हूँ तो इसको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलो अच्छा है, चाहिए एवरी टाइम। ये देख, आप इतना कुछ आपने 2 मिनट बता दिया, अगर कोई बंदा सामने बैठा होगा आपके, तो आपको कैसे पता ये? आप वैदिक की चीजें नहीं प्रेडिक्ट करोगे, वो सीधा आपको करोड़पति बनाएंगे कि भैया तू करोड़पति बन गया, तू अरबपति बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हाँ जी। नहीं, 1 मिनट बच गया अब एग्जैक्टली मेरे ख्याल में। बट वेरी नाइस लेसन अनुज जी, थैंक यू सो मच। गुड सेशन, नमस्ते, वेरी गुड को सेशन। अच्छा लगा। और शशांक जी, आई थिंक ही साइलेंट एंड वो शायद
इसका गहन आई थिंक शांत I'm listening. Okay. Good. All right. The first thing I realized when I opened the reference chart, दिया, you might be okay. no, what I was saying, because although we were focusing only on MF today, but when I opened the chart, the first thing I wanted to confirm with you was this guy comes out as a very का मंगल ये दोनों हाँ जी इस हाउस का जी ठीक है, तो मंगल का MF देखेंगे हम. लेट्स टॉक अबाउट द 1.4. ओके हो गया जी तो फोर्थ हाउस में, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉब्लम दे रहा है कि 22 पॉइंट्स है भैया, तो दैट मींस ही विल नॉट बी एंजॉयिंग दैट यू नो घर का फैमिली हैप्पीनेस और घर वार का वो जो एक हैप्पीनेस होता है. फोर्थ हाउस हैप्पीनेस विल बी नॉट देयर एज पर एसएबी. राइट ओके राइट बट this is the quality part. The अंश is quality part, MF is quality part, दोनों का इसको कंप्यूट करेंगे हम. अब यहाँ पे तो 22 है, लेकिन यहाँ पे अंश जो कर रहा है, अंश is in a good status, that is 1.4. जी ओके मंगल जी. सो प्रभा जी, यहाँ पे क्या होगा कि पर्सन माइट बी एंजॉयिंग द थिंग्स, प्रॉपर्टी होगी, प्लॉट्स होंगे, अच्छा कोठी होगा, उसका बड़ा घर होगा, लेकिन ही might be not showing to the society के he has so much property. ऊपर से वो बस सिंपल सा लगेगा, कुर्ता डालेगा फटासा, ऐसे बाहर को घूमेगा चप्पल डाल के कि भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है. He won't speak, but he will look like that. Okay. He won't show to the society. Okay कि मेरे पास ऐसा नहीं है कुछ. This is the quality part, but Mangal and Mangal, this is Karkansh and the Mool Karkansh. Okay, so when we just jump to the MF factor, this will determine or fix the quality. This is not the timing. MF is not the timing. Please understand. This is the quality. कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है. वो दीवार वाला डायलॉग बोलेगा ना फिर वो, घर है, वो गाड़ी है, बंगला है, माँ है, तुम्हारे पास क्या है. तो यहाँ पे अप्लाई होगा भैया कि यहाँ पे 22 पॉइंट्स है, ही इज नॉट शोइंग ऑल दिस. ऐसा डायलॉग वो नहीं बोलेगा. सो अनूप जी, हाँ जी, हाँ बोलिए. तो अनूप जी, बेसिकली इट मींस कि एसएवी इज द पब्लिक फेसिंग पार्ट ऑफ इट एंड एमएफ इज द ट्रू क्वालिटी. क्या एक्चुअली क्या है? एमएफ इज स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस. ओके ये स्ट्रेंथ हो गया उसका. स्ट्रेंथ उसका वीक दिखाई दे रहा है बाहर से. ठीक है. उस्मान अनूप जी, आई हैव अ डाउट. बहुत उसका. यस हाँ जी अनूप जी, बोलिए. अभी मार्स का जो पॉइंट्स हैं, द बिंदुस हैं, वो 4 हैं, राइट? आप बिंदुस नहीं देख रहे हैं, 4 पॉइंट वाला. कहाँ बिंदुस मंगल का 4 है, राइट? तो 4 माने 5.6 हो गया. लेकिन नॉट बिंदुस. ओके, agree, लेकिन taking things otherwise. No. Here we have to see अंश, कारकांश. Are not taken as per bindus. Karkansh is Karkansh. Okay. Mool Karkansh is Mool Karkansh. Okay. ठीक है ना? जो मल्टीप्लाई करके बाद उसकी स्ट्रेंथ देखनी है एमएफ से. उसका देखिए व्हाट इज एमएफ. दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ एनी प्लैनेट एज पर सीन इन द राशि चार्ट. ओके. कोई भी प्लैनेट किसी भी राशि में गया, वो उसका एमएफ वहीं से फिक्स होगा. हाँ. सत्य. अगर मान के चलिए मून इज इन कैंसर, तो वो अपने घर में ना.
हाँ जी, तो मून इज कंफर्टेबल. आप में बैठोगे, फ्रिज खोलोगे, टीवी देखोगे, यू आर ना, हाँ जी, यू आर कंफर्टेबल. आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा बिकॉज यू आर इन योर ओन हाउस. हाँ, तो यहाँ पे मंगल कर रहा है 1.4 फ्रीडम. उसको फ्रीडम मिल गया मंगल को हाँ जी, फॉर द क्वालिटी एंड द क्वांटम पार्ट. एक से ज्यादा हो गया. हाँ जी. Okay. One value is Newton, and if Okay. it is more than one, that is comfortable. That planet is comfortable as per Karak, and if it is less than one, that means he is not position. Right? That means he is not in उपचे houses. Okay? चलो मैं ये भी ऐड कर देता. मनुज ने ये पॉइंट MF फैक्टर का रेडिश किया इसको बिकॉज इसका MF फैक्टर और ये प्लेनेट इसमें कंफर्टेबल नहीं है. Okay. As an अंश एंड कारकांश, as an planet also. हाँ जी, तो भी मैंने बता दिया. ऐसे भी प्लस यू कैन प्ले के expression of the arconch and the root conch as per FM, or sorry, M, and then you check the SAV. You have to apply this for the charts, and then you will. I will give you the reference also. Don't worry. In the Cast Pension book, you will know कि ये कैसे calculate होता है सारा. Okay. Sure. I think more of us ignore the Cast Pension reader 1. सब कुछ उसमें हुआ है basically. Right. आपने आज हमें ऐसे भी बताया which is public thing, like जो लोग जो सोचते हैं, और MF जो है which is a reality. No. This is not a public thing. This is not a public thing. Just I explained. I given an example. I know. This is the strength of the house. नहीं, जैसे 22.28 है, and Okay. because if it is Mars is 1.4, so you said वो बंदे के पास प्रॉपर्टी है, बट वो दिखाता, I mean if it was not 28, it was 22. इसमें से लोगों को दिखाने के लिए वो कपड़े ऐसे पहनते हैं, but because it is 1.4, he's got property, right? हाँ, उसका सोशल फिगर्स है. You mean to say कि नहीं बाहर से दिखा यार नहीं, इसके कुछ नहीं होगा. Okay? हाँ जी. तो ऐसे भी बाहर से दिखता है. तो कई बार क्या होता है इंटरनल नेचर. वो तो क्वालिटी पार्ट है. And if you multiply with Windows, this means it is for a कारका, for उसका B house का रैंक बताता है अपने, right? Yes. उसका स्ट्रेंथ बताता है कि कितना रेशो इसका है, राइट? हाँ जी. Okay. हाँ मनु जी. हाँ जी अनुज जी. I think okay. There are 3 things we learned. हाँ, तो प्रभा जी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. और यहाँ हाँ, Right. This is not a new thing. This is given in the Cast Dimension book. हाँ. So Prabha Should ji, I give the reference page? Yeah, please. हाँ हाँ जी. जी. You can open 193 page. The Cast Dimension book. 193. Okay. 193. Because everybody has the same book. Yeah. Perfect. Shashank, are you there? Yes, I'm here. I'm listening. Yeah, open 193 page. You can see the 193 page. 193? Whenever you will get the chance.
193. हाँ जी. Just you know the book. Just to explain the things in a simple way. And on page 194, No base rates actually. yeah, 193, 194, that is the same thing because yeah, 194 में Pida end हो गया है उसका, है ना? yeah, Pida Sankhyak 194 में mention हुआ है. हाँ, yeah. पे 193 और 194 रहेगा, then you will understand कि मैं इसीलिए एग्जांपल लेता हूँ so that कि you can make friends for that. Okay? Right. ये nobody is applying such laws. Everybody is jumping to the car conscious, the root car conscious को देख लिया, deny हो गया, ये हो गया. नहीं भैया, ऐसा नहीं होता. Sometimes you have to go for the detail. Actually, yeah. Okay? Everything. Yeah. This is the thing is there. But what I'm doing, I'm simply explaining the things verbally. Yes. गुरुजी ने यही बोला है एक्चुअली, जो पे दिया है गुरुजी ने यही बोला है ऊपर से. So this is a great part. हम उसका एस्पेक्ट देख रहे हैं भैया, और भी कुछ देखना आपने. कारकांश हो गया मीन्स का 0.4 हो गया या 0.8 है उसका एमएफ. ठीक है. तो भैया वो सोसाइटी में शो ऑफ कर रहा है. और द फोर्स बोलिए, 6th हाउस बोलिए, किसी भी हाउस के लिए बोलिए, मनी मैटर्स में बोलिए, 11th हाउस में. तो वो दिखाता है मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी वाड़ी में घूमेगा. तो चाहे वो रेंट पे ले टैक्सी, लेकिन दिखाएगा मेरे पास पैसा है. ये समझने की बात है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बस इसको एक बार समझ लो आप, कॉन्सेप्ट को. बस बुक में पढ़ लो यार. मेरा कहना मत मानो आप. जस्ट रीड द बुक. 193 पेज 194. अनूप जी बात ये और जैसे आपको समझ आता है वैसे लो आप. अनूप जी बात ये 193 पेज पढ़ के आपको समझ में आ गया, हम लोग फिर भी लगेंगे. I would agree to a great extent. This is the problem. This is the problem. अब आपको आराम से समझ आ जाएगा वो पेज. अभी नेक्स्ट सेशन में आपको आई विल के डिले कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगर कोई प्लैनेट किसी हाउस को देख रहा है उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ये नहीं है कि इसका अंश देख रहा है डिले करेगा. कोई प्लैनेट भी कर सकते हैं या बैड मैन, गुड और बैड, एनीथिंग. तो क्या होता है फिर पीडीएफ आगे, फिर पीडीएफ होता है आगे बढ़ जाता है ना. आप जो पीडीएफ चूज करते हो वो नहीं मिलता आपको, वो निकल को जाता है वो. हाँ जी. तो आप भी चेक लीजिए उसको. आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना, उसको अप्लाई कीजिए. दिस इज द सेम थ्योरी. दिस इज द सेम थ्योरी है इसमें. ये तो लाइफ लॉन्ग है, जो ऐसे भी है लाइफ लॉन्ग है. स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस. लेकिन ये स्ट्रेंथ कितना अंदर से दिखता है या बाहर से दिखता है. बाहर स्ट्रेंथ दिखता है या अंदर से है. ये खोखला तो नहीं है स्ट्रेंथ इसका. हवा अंदर, ये भी देखना है ना. तो नहीं मुझे कोई. अनूप जी इस चार्ट में जैसे 10th हाउस का 26 से ही है एंड सैटर्न इज ओनली 1 जो कारकांश कारकांश है. दिस मींस ही इज नॉट इन अ वेरी गुड जॉब. कैन यू से दैट? प्रभा जी हमने फोकस किया था 8th हाउस का. हाँ जी. 8 से हम 4th में आ गए, 4th से हम 10th में जाते. प्रभा जी हमने फोकस किया था 8. अभी आप करोगे इसका कारक 10th का 5th एंड यू विल गो टू द 12th हाउस. देखोगे सामने शनि आ गया एक पॉइंट पे. सो ही इज ग्राउंडेड टू द अर्थ. ये
अथॉरिटी के बारे में बूस्टिंग नहीं करेगा ज्यादा, जो है सो है। भैया मैं उस मान के चलिए कि मैं उस फर्म में लगा हूँ, कंपनी में लगा हूँ, मैं क्लरिकल पे हूँ, वो ये नहीं बोलेगा मैं ऑफिसर लगा हूँ। हाँ, ओके, ऐसे। ठीक है, वो बूस्टिंग नहीं होगा उसके बारे में। Okay. समझा कुछ? क्योंकि उसके अंश जो है, उसके दोनों अंश जो 10th हाउस के हैं वो शनि, कारकांश भी शनि है। ओके, हाँ जी, तो शनि का एफ जो है ना, दैट इज न्यूट्रल, that is 1. तो दैट मीन्स कि वो बंदा हाँ जो है सो है। Okay, तो यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन फॉर द अथॉरिटी। कि okay. मैं ये नहीं है मैं बैल हूँ भैया, मैं बहुत सीईओ लगा हूँ, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, बोलेगा वहां पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने रेफरेंस पेज दिए को 19314, भैया पढ़ लो, देख लो, कैलकुलेट कर लो, फिर से नहीं पूछना, ठीक है? तो बड़े के लिए, सभी के लिए। और अप्लाई करो, यू जस्ट अप्लाई फॉर द चार्ट। 8th हाउस को मैंने शिफ्ट इसलिए किया, यू ऑलवेज फोकस फॉर द डेथ, ध्यान ही उधर जाता है 8th हाउस के लिए। तो मुझे बोला था इसको उड़ा दो यार, 8th हाउस को छोड़ो आप, लेट इट बी ब्लैक। Yeah, we have a Anup ji, tendency एक to और look at doubt है negative अभी। events. बोली अनूप जी, सेकेंड हाउस के लिए भी अभी मून कारकांश और मूल कारकांश है, बट यहाँ पर मून को 0.8 है, मीन्स लेस है। So this means he is not having family happiness और मनी नहीं। तो यहाँ पे नेट एसेट्स तो नेट एसेट्स उसके इतने अच्छे नहीं है, क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। ओके, फैमिली वे, फैमिली करिए आप इसको, फैमिली का हाउस लेके चलिए, जस्ट टू इंक्रीज द मेंबर ऑफ द फैमिली, number of Family is planets also with not good. more planets in the bracket will tend to add the family members also. Okay. Okay, worries will be also there. अभी मैं बताऊँ, आप सोचना बाद में, more planets in the 7th house, more planets in the 11th house, आपको बहुत ज्यादा worries देंगे। हाँ। Every time you won't get of the worries. हाँ। Always एक प्लेस दूसरा आ जाएगा, अंतरा दूसरा तीसरा आ जाएगा, आप सेकंड हाउस से नहीं छूटोगे। हाँ। बराबर। Correct. Try to understand. They are always eager. They are always eager. एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, डी में जाए ई में आ जाएगा, ई में जाएगा डी में आ जाएगा, तो बिल्कुल ये चलता रहेगा। So more planets in the 7th and in the 11th house. यही योगा है। हम वैदिक में योगा कहाँ से है, ये वैदिक है, ये ऐसा हो गया वैसा, कुछ नहीं। आप सामने होगा सब कुछ मेरी तरह बोलोगे फिर आप अंदर से। मोस्ट इन द सेकंड हाउस, हेड बचा अरे 3 हाउस है उसके, सेकंड हाउस में ज्यादा प्लेनेट हो गए, 7th में हो गए, 10th में हो गए, 11th में सॉरी हो गए। क्या बंदा भागेगा बाहर को, घर छोड़ के भागेगा? दुखी आत्मा होगा। तो बहुत अच्छा है, आप बुक को ध्यान से पढ़िए, गुरु जी की बुक, इसको एक बार आप छुट्टी लेके पढ़ लीजिए 2-4 दिन। दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल। और मैं तो इसको पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार 15 साल से गुरु जी का वो ऑडिट में सुनता हूँ सब कुछ। तो ये these are important factors। हम सीधे की फंड है, DAE देख लो, एस्पेक्ट हो गया, यस नो हो गया, गुड और बैड हो गया, वो ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू स्टडी दैट आल्सो। आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ा इधर उधर से कर रहा हूँ, लेकिन किताब पढ़ते रहते हैं, आई एम सेइंग आपने अच्छी तरह समझा दिया आज। नहीं ऐसा नहीं है प्रभा जी,
नहीं, कंसंट्रेट नहीं seriously, कर because पाते we हैं। just read it just पेज as का a, रेफरेंस देख भैया। yeah, it's really nice. तो It's explained. मनु जी तो यही बोलते हैं, कहते मैं तो हर बार पढ़ता हूँ तो इसको, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलो अच्छा है, चाहिए True. एवरी टाइम। Yeah. ये देख, आप इतना कुछ आपने 2 मिनट में बता दिया, अगर कोई बंदा सामने बैठा होगा आपके तो आपको कैसे पता ये चीज़? आप वैदिक की चीजें नहीं प्रेडिक्ट करोगे, वो सीधा आपको करोड़पति बनाएंगे कि भैया तू करोड़पति बन गया, तू अरबपति बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, 1 मिनट बच गया अब एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में। But very nice lesson, Anuj ji. Thank you so much. अरे Yeah. Good चलो session. नमस्ते, Very good मेरे को session. अच्छा लगा सर। और शशांक जी आई थिंक ही साइलेंट एंड वो शायद इसका गहन आई थिंक शशांक I'm listening. not okay good और The first thing I realized when I opened the रेफरेंस chart, दिया, you might be okay. no, what I was saying, because yeah, although we were focusing only on MF today, but when I opened the chart, the first thing I wanted to confirm with you was this guy comes out as a